जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 54। भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवन्विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन, इंद्रिय और शरीर एवं धन, जन आदि सर्वस्व को भगवान का समझकर भगवान के लिए, भगवान की ही सेवा में सदा के लिए लगा देना, यही अनन्य भक्ति है। फिर भगवान ने अर्जुन को सुनाकर कहा कि यह भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्त को उचित है कि वह अपनी समस्त भावनाओं को एकत्र करके प्रेम से परिपूर्ण होकर मेरी ओर बढ़े और मुझ में मिलकर मेरे साथ समरस हो जाए, मेरे साथ मिलकर एक हो जाए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य छोटी सी चींटी को भी मैं ही समझे और समस्त स्थावर जगम को भी मुझसे अभिन्न माने। बस इसके सिवा और किसी प्रकार की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। जिस समय इस प्रकार की एक ऐक्य वाली अवस्था प्राप्त होगी, उसी समय मेरे स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, और ज्यों ही किसी को मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा, त्यों ही उसे स्वाभाविक रूप से मेरे दर्शन भी हो जावेंगे। तब फिर मैं और वह स्वभावतः मिलकर एक मैं ही हो जाते हैं और वह भक्त मुझ में मिलकर एक रूप हो जाता है। But by the single-minded devotion can I, of this form, be known and seen in reality and also entered into, O Parantapa, O scorcher of thy foes. Ananya Bhakti is unswavering devotion. In this stage, the sadhak recognizes nothing but Ishtadeva. He makes over his entire being to the Lord. All that he contracts through the senses and the intellect is he. Whatever he does is the Lord's activity. There is a state greater than seeing the Lord. Contact and communion with him is what is wanted. Ananya Bhakti takes the devotee through all these stages in his pursuit of the Lord. He feels first the presence of divine, he gets the vision of the Lord next. Then he moves intimately with him until unison is reached. Unswavering devotion provides all these possibilities. Om. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 54. ഭക്തിയാ തുനന്യയാ ശക്യാഹമേവം വിദുരർജുന ജ്ഞാതൂം ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു, ഹേ അർജുന, ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നവനെ, അനന്യമായ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ രൂപത്തിലുള്ള എന്നെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാനും നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് ഏകീഭവിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അനന്യഭക്തി. ഭഗവാനിൽ മാത്രം അചഞ്ചലമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അനന്യഭക്തി. സ്വന്തം മനസ്സും ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ധനവും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് കരുതി അവയെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് അനന്യഭക്തി. അത്തരം ഭക്തിയിൽ ഭക്തർ തന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഏകീകരിച്ച് പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും പിന്നീട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും അവസാനം ഭഗവാനുമായി പൂർണ്ണമായ ഏകത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ പോലും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ കാണുകയും സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ യഥാർത്ഥമായി അറിയുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ദർശനവും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നു. ഒടുവിൽ ഞാനും ഭഗവാനും എന്ന വേർതിരിവില്ലാതായി ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ ഏകീഭവിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 11, श्लोक 54. भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवं विधिजुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतंप. परंतु हे धन्य अर्जुना, अशा प्रकारे अविभाजित भक्तीद्वारे मी चतुर्भुज रूप प्रत्यक्ष पाहण्यास, त्याला तत्वतः जाणण्यास आणि त्याच्यामध्ये प्रवेश करण्यास म्हणजेच त्याच्याशी एकरूप होऊन ते प्राप्त करण्यास समर्थ आहे. ईश्वरावर अनन्य प्रेम करणे आणि आपले मन, इंद्रिय, शरीर, धन, लोक इत्यादींना ईश्वर मानून सर्व काही ईश्वराला समर्पित करून त्याच्या सेवेत कायमरूपी राहणे हीच ती अनन्य भक्ती आहे. मग ईश्वराने अर्जुनाला हे सांगितले आणि म्हटले की ही भक्ती कशी असावी. भक्ताने आपल्या सर्व भावना एकत्र करून प्रेमाने भरून माझ्याकडे यावे आणि माझ्यात विलीत होऊन माझ्याशी एकरूप व्हावे, हेच त्याच्यासाठी योग्य आहे. खरी भक्ती तीच आहे ज्यात साधक एक लहान मुंगीलाही मी मानतो आणि सर्व चल व अचल वस्तूंना माझ्यापासून अविभाज्य समजतो. याशिवाय दुसरी कुठलीही खरी भक्ती नाही. ज्या क्षणी अशी एकरूपतेची अवस्था प्राप्त होते त्याच क्षणी माझ्या स्वरूपाचे अचूक ज्ञान प्राप्त होते आणि जसा कोणी माझ्या स्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करतो त्याला स्वाभाविकपणे माझे दर्शनही होते. मग मी आणि तो स्वाभाविकपणे या एका मी मध्ये विलीन होतात आणि तो भक्त माझ्यात विलीन होऊन एकरूप बनतो. परंतु एकाग्र भक्तीनेच या स्वरूपातील मला वास्तविकतेत जाणता व पाहता येते आणि माझ्यात प्रवेशही करता येतो. हे परतंपा, अनन्य भक्ती ही अविचल भक्ती आहे. या अवस्थेत साधक इष्ट देवाशिवाय कशालाही ओळखत नाही. तो आपले संपूर्ण अस्तित्व भगवंताला समर्पित करतो. इंद्रिय आणि बुद्धीद्वारे जे काही ग्रहण करतो ते सर्व तोच असतो. तो जे काही करतो ते भगवंताचेच कार्य असते. भगवंताचे दर्शन होण्यापेक्षा ही एक श्रेष्ठ अवस्था आहे. त्यांच्याशी संपर्क आणि सहभाग साधणे हेच अपेक्षित असते. अनन्य भक्ती भक्ताला भगवंताच्या शोधात या सर्व टप्प्यामधून घेऊन जाते. त्याला प्रथम ईश्वरी अस्तित्वाची जाणीव होते, त्यानंतर त्याला भगवंताचे दर्शन होते. मग एकरूपता प्राप्त होईपर्यंत तो त्यांच्याशी एकरूप होऊन वावरतो. अविचल भक्ती या सर्व शक्यता उपलब्ध करून देते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 54. భక్త్యాత్మనన్యయా శక్యా అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టంచ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. అయితే శ్రేష్ఠ తాపసువైన ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఈ విధమైన చతుర్భుజ రూపి అని నేను ప్రత్యక్షంగా చూచుటకు, తత్వంచే తెలుసుకొనుటకు, నాలో ప్రవేశించుటకు అనగా ఐక్యభావంతో పొందుటకు
శక్యుడును. భగవంతుని యందే అనన్య ప్రేమ కలుగుట, అదేవిధంగా తన మనసు, ఇంద్రియములు మరియు శరీరము మరియు ధనము, తన పరివారము మొదలగు సర్వస్వమును భగవానుడివే అని భావించి వాటిని భగవంతుని కోసం, భగవంతుని సేవలో శాశ్వతంగా అర్పించుట, ఇదే అనన్య భక్తి. మరలా భగవానుడు అర్జునుకు వినిపించి చెప్పినది ఏమంటే, ఈ అనన్య భక్తి ఎలా ఉండాలి అని. భక్తులకు తగినది ఏమంటే, అతడు సమస్త భావనలను ఏకం చేసి ప్రేమ పరిపూర్ణై నా వైపు మరలాలి, నాలో కలిసి, నాలో సమరసుడు కావాలి, నాలో కలిసి ఏకం కావాలి. ఏ మానవుడు చిన్న చీమను కూడా నన్నుగానే అర్థం చేసుకుంటాడో మరియు స్థావర జంగములను కూడా నాకన్నా భిన్నమైనవి కావని భావిస్తాడో, అటువంటి భావన ఎవరైనా ఉంటుందో అదే నిజమైన భక్తి. అంతే, ఇది తప్ప వేరే ఏ రకమైన భక్తి నిజమైన భక్తి కాదు. ఎప్పుడు ఈ విధమైన ఏకత్వపు స్థితి ప్రాప్తిస్తుందో అదే సమయంలో నా సర్వస్వం యొక్క సరైన జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఎవరికైనా నా స్వరూపం యొక్క జ్ఞానం కలిగినంతనే అతనికి స్వాభావికంగా నా దర్శనం కూడా కలుగుతుంది. అప్పుడు మరలా నేను మరియు అతడు అనేవి స్వభావతః కలిసిపోయి నేనే అయిపోతాము. ఆ భక్తుడు నాలో కలిసిపోయి ఏకరూపుడు అవుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मुदा हे परन्तप अर्जुन, मात्र अनन्य भक्ति के माध्यम से अय प्रकार के चतुर्भुज स्वरूप वाला हम प्रत्यक्ष रूप से देखल जा सकैत छी, तत्वतः जानल जा सकैत छी। आ हमरा में प्रवेश क माने एक ही भाव से हमरा प्राप्त सेहो कयल जा सकैत अछि। भगवान में अनन्य प्रेम भ जाय आ अपन मौन, इंद्रिय, देह, धन, जन आदि सब किछ भगवान बुझ ओकरा भगवान लेल आ भगवान सेवा में सदा लेल समर्पित क देल जाय, यह अनन्य भक्ति अछि। तकर बाद भगवान अर्जुन के कहै छथि जे ई भक्ति केहन हेबाक चाही। भक्त लेल ई उचित अछि जे ओ अपन समस्त भावना के एकत्र क प्रेम सँ भगवान दिस बढ़ैत जाय आ अंततः हुनका में मिल क हुनके संग समरस भ जाय, माने हुनकर संग एक भ जाय। असल भक्ति वह अछि जाय में मनुख छोट सँ छोट चीटी के सेहो हमरे स्वरूप बुझाय आ समस्त स्थावर जंगम जगत के भगवान से अभिन्न मानय। ऐसा फराक दोसर कोनो प्रकार के भक्ति पूर्ण अर्थ में असल अनन्य भक्ति नहीं कहल जा सकैत अछि। जखन एहन एकत्व वा ऐक्य के अवस्था प्राप्त होइत अछि तखने भगवान के वास्तविक स्वरूप के यथार्थ ज्ञान होइत अछि। आ जखन ककरो भगवान के स्वरूप के असल ज्ञान भ जाइत अछि तखन स्वाभाविक रूप सँ ओकरा भगवान के दर्शन सेहो भ जाइत अछि। तखन अपन आ अनकर केर भेद अपने आप मिटा जाइत अछि आ दुनू मिल क केवल एकटा हम रह जाइत अछि। ओ भक्त भगवान में मिल क एक रूप आ अभिन्न भ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।